Dear students, good evening and welcome you for this fantastic lecture again on accounting concepts and conventions. Yesterday we started with all these concepts and conventions, and if you remember, we have seen three concepts and conventions yesterday which are visible on your screen. आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये तीन कन्वेंशंस हमने देखे थे एंड व्हाट वी स्टार्टेड यस्टरडे इज नथिंग बट विथ गैप्स एंड गैप्स आर कॉल्ड एज पॉपुलरली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा? गैप्स आर कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. व्हाट इज बेसिकली दिस वन? दीज आर नथिंग बट फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. ये फंडामेंटल अकाउंटिंग क्या है? अजम्पशंस है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये इसका फुल फॉर्म है. कल ही हमने देखा था. एंड इन इंडिया दिस इज गोइंग टू बी फ्रेम्ड बाय आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. एंड विदाउट दिस द अकाउंटिंग कैन नॉट फंक्शन. जिस तरह से मैंने आपको बोला, मैथ्स में 0 1 2 3 4 ये नंबर्स है विच वी कैनॉट चेंज. दीज आर द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ द सब्जेक्ट. This is the fundamental truth of the subject. Similarly, these are the alphabets in English without which English cannot stand. That is A, B, C, D, E, F, G. इसके बिना तो इंग्लिश नहीं चलेगी. उसी तरह से मैथ्स नहीं चलेगा 0 1 2 3 4 5 से. So accounting is having its own assumptions in terms of these basic things, and we can see them as certain accounting concepts, principles, and conventions. Number one is business entity concept. Yesterday even we have seen that why these are essentials and why these are going to be prepared and why these are going to be followed as far as accounting concepts, accounting principles, accounting fundamentals are concerned. These are called as gaps. So ये उसके reason है कि ये क्यों follow किए जाते हैं. Reason number one, it is going to help you to prepare reliable financial statement which is visible for you. Second, there will be uniformity in presentation. Third, generally acceptable basis for measurement. Number 3. Number 4, proper information to all. And number 5, valid and appropriate assumptions. So these are the 5 things as far as gaps are concerned. अभी gaps हमने कल देखे थे, बस आपके लिए quickly मैं तीनों रिवाइज करता हूं. Number 1 is business entity concept. What the business entity concept says that business and owner are two separate legal entities as far as the law is concerned. So in the eyes of law, owner and business are two separate legal entities, and what by that whatever owner gives to the business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from the business for personal use, owner is liable to pay it back to the business, which is called as drawing. Now the basic inference as far as this particular concept is concerned, अगर ये concept का inference हम निकालेंगे बेटा, तो इसका inference यही है that we should have two separate set of books of accounts, one for business books and one for business books of accounts and another for personal books of account of the owner, so that the business transaction and personal transaction should not be mixed with each other. And we have example here as well. Let's say the building is used for partly business purposes and partly residential purposes. Rather 50% business और 50% residence के लिए आप building use करते हैं, तो आधी जो रेंट है आपको बुलानी पड़ेगी बिजनेस रेंट, और आधी रेंट है आपको लेनी पड़ी ड्राइंग, और एल्स यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर रेसिडेंस. सो दैट इज व्हाट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऑल अबाउट. 3 लाइन फिर से रिपीट करता हूं. बिजनेस एंटिटी में अगर बिजनेस एंटिटी समझना है तो बड़ा आसान है. नंबर 1, इन द आईज ऑफ लॉ ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. यानी लॉ की नजर में बिजनेस और ओनर ये दो अलग चीजें हैं. दूसरा, दैट इज हाउ whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner. तो अब ओनर क्या देगा? ओनर देगा रिस्क कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको उम्मीद है कि प्रॉफिट होगा बिजनेस से. सो whatever owner gives to the business is liable to pay it back to the owner in terms of profit, क्योंकि कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट किया तो उस पर प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस और ओनर को वापस करेगा. एंड along with that, if owner withdraws certain amount for personal use, then owner is liable to pay it back to the business. The inference of this basic concept is that there should be two separate set of books of accounts. Number 1, for business transaction, it should be recorded in business books of account. The personal transaction should be recorded in owner's personal books of account. So there should not be any mixture of business transaction and personal transaction. That is what
बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। दूसरा कंसेप्ट बेटा जी हमने देखा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज दैट business records only monetary transactions in the books of accounts. It doesn't record non-monetary transactions in the books of accounts, though they are very important for the business. For example, relationship between employer and employee. For example, strike of employees. For example, working conditions of the business. All these things, though they matter for the business, still it cannot be recorded in the business books of account. Further, it says that these days business is not a domestic affair, it is a global affair. आजकल बिजनेस सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंटियर पे नहीं रहता, बिजनेस ग्लोबल फ्रंटियर पे चल रहा है। तो ये केस में क्या होगा कि आपको जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जो हम बनाते हैं दो चीजों में, एक को हम बुलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बड़ा सिंपल है बेटा, जिसमें हम बताते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और दूसरी चीज हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? A statement of various assets and liabilities as on a date. हमें पता है assets और liabilities क्या होते हैं। हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बताते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, और देखते हैं दैट इफ योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर मोर देन इनकम एंड गेन्स, मतलब या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, दो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का सीधा साधा बोलना क्या है? बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इट नेवर रिकॉर्ड्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉइज, वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज, loyalty of the employees, relationship between employer and employee. Further, money measurement concept says that the business these days is not restricted to domestic boundaries. In this case, business is having its worldwide operations, and in that case, the financial statements, final accounts should be expressed into home currency, into your that currency from where the business has been ओरिजिनेटेड। ऐसे केस में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी होम करेंसी में बनानी चाहिए बेटा, आपके रूलिंग करेंसी में बनानी चाहिए जहां से बिजनेस ओरिजिनेट हुआ है। तो बस इतना ही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है तीन चीजों में। नंबर वन, बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस। नंबर टू, business doesn't record non-monetary transactions into the books of account, though they are very important for the business. For example, strike of the employees, working conditions of the employees, relationship between employer and employees. And lastly, it says that the business these days is not operating only in domestic territory, rather it is having its operations worldwide. In that case, the financial statements, that is profit and loss account and balance sheet, must be prepared in the ruling currency, home currency, or from the currency from where the business has been originated. यानी जब आप आपका रिजल्ट बता रहे पूरी दुनिया को, तो आपने रिजल्ट बताना चाहिए आपकी होम करेंसी में, आपकी रूलिंग करेंसी में, या आपकी ऐसी करेंसी में जहां से आपका बिजनेस ओरिजिनेट कर रहा है, शुरुआत हो रहा है। अगर आपने यूएस से शुरुआत की थी तो आप डॉलर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे, इंडिया में शुरुआत की थी तो आप आईएनआर में बताएंगे बेटा, और अगर आपने यूके में शुरुआत की थी तो पाउंड में बताएंगे। बस इतना सा सिंपल कंसेप्ट है, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लेट्स सी द थर्ड कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कल हमने ये देखा था, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं आपको कि कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता क्या है। ऑल इन ऑल द कंसेप्ट सेज दैट द assets or the fixed assets which are there in the business, they should be recorded at their purchase price, acquisition price और cost price. जो भी आप फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं एक बिजनेस में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? आपके असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बट कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? आप रिकॉर्ड करेंगे उनके परचेस प्राइस पे, एक्विजिशन प्राइस पे, या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। डज इट मीन दैट द कार विच वाज परचेस्ड इन 2015 विल हैव द सेम वैल्यूएशन इन 2024? आंसर इज नो। रादर कॉस्ट प्राइस विल बी द बेसिस फॉर शोइंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट हर साल कॉस्ट प्राइस से आप डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे। डिप्रीशिएशन का मतलब है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स or the systematic reduction in the value of fixed assets due to use of the asset, wear and tear of the assets, or technological outdatedness.
तो ये डिप्रीशिएशन सिर्फ फिक्स्ड असेट पे ही चार्ज किया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था डिप्रीशिएशन इज अ परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। हर असेट की अपनी इकोनॉमिक लाइफ होती है बेटा। आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लीजिए, मोटर कार खरीद लीजिए, फर्नीचर खरीद लीजिए, उसकी अपनी एक इकोनॉमिक लाइफ है, उतने टाइम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट वही बोलता है दैट द फिक्स्ड असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेस प्राइस। It doesn't mean that they should always be having the purchase price in the books of account. Rather, it is purchase price minus depreciation for the current year. Remaining balance will be carry forwarded for the next year. मान लीजिए आपने कार खरीदी 50 लाख की 2015 में और उसकी वैल्यू थी 50 लाख की, और हर साल उस पर डिप्रीशिएशन आपको देना है 5 लाख रुपए 10%, तो 45 लाख आएगी कार की वैल्यू, है ना। कब? 2018 में। 2018 से 19 जाएंगे, फिर से आपको 5 लाख का डिप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, 40 लाख आएगी। ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे बेटा? ऐसा करते करते आप तब तक जाएंगे जब तक कार की वैल्यू जीरो ना हो जाए, जब तक कार की वैल्यू जीरो ना हो जाए। दिस इज पर ईयर डिप्रीशिएशन ऑन 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। ओरिजिनल कॉस्ट असेट की कितनी है बेटा जी? 50 लाख है। 50 लाख पे हर बार अपन 10% चार्ज कर रहे, तो ऑब्वियसली 10 साल में कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डिप्रीशिएशन। कॉस्ट कंसेप्ट आगे ये भी बोलता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू शो द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स यू नीड टू ऐड एनी एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल फॉर द परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट। इसका मतलब है आपने जो भी असेट फिक्स्ड असेट खरीदा उसके साथ अगर आपको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ा होगा, जैसे कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की है, इंपोर्टेड कार खरीदी तो, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे की, आपने कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए, आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए फॉर ब्रिंगिंग दैट असेट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द प्लेस ऑफ योर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है इनको हम कैपिटलाइज करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट में। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते नहीं अगर आप असेट खरीदते नहीं तो। कल का एग्जाम्पल याद कीजिए, मैंने बोला था कार आपकी 2 करोड़ की है, कार आपकी 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ का इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ा, और ये रियलिटी है। गवर्नमेंट चार्जेस हेवी इंपोर्ट ड्यूटी टू डिस्करेज इंपोर्ट्स सो दैट पीपल शुड गो फॉर देसी एंड स्वदेशी, दैट इज मेड इन इंडिया, है ना। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट यूज करो, बाहर के प्रोडक्ट यूज मत करो। इसलिए गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है 200%, 3%। बेटा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इसके बिना इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये समझते हैं तो याद रखना ये आपकी जिंदगी भर की असेट है। आप जब तक कॉमर्स में हैं, जब तक जिंदा है, तब तक तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम में ही आएंगे, मतलब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या किया जाता है कि ये कंसेप्ट पढ़ाए ही नहीं जाते। अब इससे तो बड़ा कियोस्क क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए बच्चे को 0 1 2 3 पता नहीं है मैथ्स पढ़ते टाइम, या ABCD उसको पता नहीं है अल्फाबेट अगर पढ़ते टाइम, तो उसकी क्या हालत रहेगी आगे चल के। तो ये ना पढ़ाना इज सिंपली अ क्राइम माय डियर। सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए क्योंकि इसी पे सब्जेक्ट बेस्ड है। आर यू गेटिंग मी? पूनम, शीतल, राजवीर, समझ में आ रहा है? ये बेसिक है बेटा, तो इसके बिना अपन आगे नहीं जा सकते। और बड़े सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, इन्होंने बहुत सारे पैराग्राफ दिए थे बट दैट डजंट मैटर। मैं आपको 3 से 4 लाइन में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, हम उसी तरह से लिखेंगे भी ताकि ये कंसेप्ट आप अच्छे से मगअप कर पाए, याद कर पाए। क्योंकि ये आपको पूरा सीए होने तक, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम होने तक, आप सीए भी नहीं हुए तो आपके फंडामेंटल बड़े अच्छे होने चाहिए। आप बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, जो भी आगे कॉमर्स में करेंगे, ये बड़ा काम की चीज है। तो इसको हम स्किप तो करने का सवाल ही नहीं आता। तो कॉस्ट कंसेप्ट ऑल इन ऑल क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड द फिक्स्ड असेट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस और एक्विजिशन प्राइस। इसका मतलब है जो भी आप फिक्स्ड असेट खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उनको रिकॉर्ड कीजिए उनकी परचेस प्राइस पे, एक्विजिशन प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। तीनों का मतलब एक ही है बेटा, खरीदी हुई वैल्यू। बट दिस वैल्यू नीड टू बी एडेड along with any expenses on purchase like import duty paid for such purchase, transport charges for such purchase, installation charges for such purchase। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो ये सारी उसमें ऐड की जाती है। कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और उसी के साथ ये भी बोलता है थर्ड लाइन कंसेप्ट that cost is always the basis for accounting as far as the fixed asset is concerned. It doesn't mean cost is always going to be shown each and every year, but it is cost minus depreciation। और depreciation का मतलब लिख लीजिए बेटा, depreciation is permanent and gradual
reduction in the value of fixed assets. And why? Because of use of the asset, wear and tear of the asset and technological outdatedness. टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेडनेस का एग्जांपल आपका मोबाइल है, वेयर एंड टेयर का एग्जांपल आपकी कार है, लैंड एंड बिल्डिंग है. वही स्ट्रक्चर नहीं रहता ना. आपने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है 2020 में, 2025 में उतनी खूबसूरत दिखेगी ऐसी नहीं, अभी वो डिप्रिसिएट होना चालू हो गई है ना. इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी, उसका भी अपना इकोनॉमिक लाइफ है. आपने बड़ा अच्छा सोफा खरीदा है घर पे, 2015 में खरीदा था, अभी एकदम वैसे ही दिखेगा क्या? नहीं. विद द पासेज ऑफ टाइम इट्स वैल्यू इज बाउंड टू बी रिड्यूस्ड. इट्स इवन नीड टू बी ब्यूटिफाइड. अगर आपको उसको रिवाइज रिनोवेट करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो बताइए बेटा स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है बेटा? यस. शीतल, पूनम, राजवीर, अंश, कोई डाउट है बेटा आपको? ओके. तो ये तीनों कंसेप्ट लिख लेते हैं. चलिए लिखिए वन बाय वन तीनों कंसेप्ट लिखने. यूट्यूब के जो बच्चे देख रहे हैं, ये तीनों कंसेप्ट लिखने बेटा 4-4 लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है. मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, फटाफट लिखिए, ध्यान से लिखिए. तो राइट डाउन एवरीबडी. गिव द हेडिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, इंटू ब्रैकेट गैप्स, इंटू ब्रैकेट गैप्स. तो पहला कंसेप्ट क्या लिखना है हमें? गिव द हेडिंग बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जो आपको दिख रहा है यहां पे. क्या नाम है कंसेप्ट के? और व्हाट आर द अदर नेम्स टू द कंसेप्ट? इट इज बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट. ये देखिए, लीगल, सेपरेट और बिजनेस. आगे एंटिटी लगाना है सबके सामने, इज वन एंड द सेम. सो लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लिखा गया बेटा? चलिए राइट डाउन. एवरीबडी रेडी? लिख लिए बेटा, नाम लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो तीनों कंसेप्ट लिखते हैं पहले, ताकि ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहे, भूलना नहीं है हमें इसको. राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी लिख रहे हैं अपन सबसे पहले. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, आपके सामने स्क्रीन पे भी है, बट बस रेफरेंस के लिए मैं इसको आपको बड़ा क्रिस्प करके दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़े. मैगी बना के दे रहा हूं ऐसा समझ लीजिए. बस आपको मुंह खोलना है और करनी है मैगी, है ना. मस्त गरम गरम बनी हुई है, तो क्रिस्पी करके एकदम कंसेप्ट बना के रखा है आपको. राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in the eyes of law, according to this concept, in the eyes of law, owner and business, according to this concept, in the eyes of law, owner and business are to separate legal entities. Owner and business are to separate legal entities. Owner and business are to separate legal entities. सब लोगों ने लिखना है बेटा. यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने भी लिखना है. अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फोकस्ड मेहनत करेंगे, है ना. कुछ तो टाइम पास करने का तो मतलब है नहीं. तो क्या बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन द आईज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. नेक्स्ट लाइन. इट मीन्स दैट whatever owner gives to the business, it means that whatever owner gives to the business, it means that whatever owner gives to the business, whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner. Business is liable to pay it back to the owner. Business is liable to pay it back to the owner, and vice versa, and vice versa.
वाइस वर्सा का मतलब क्या है? यहां पे स्पेलिंग लिख रहा हूं आपको, किसी को दिक्कत होगा तो देख के लिखिए बेटा। वाइस वर्सा, VICEVERSA एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? ओनर जो कुछ बिजनेस को देगा, बिजनेस वापस ओनर को देगा, और अगर ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा तो ओनर को भी ये वापस देना पड़ेगा बिजनेस को, अगर उसको उतना ही कैपिटल बताना है तो दैट इज व्हाट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जो कुछ पहले चीज दी है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे कि हमने लिखा कि वट एवर ओनर गिव्स टू द बिजनेस, बिजनेस इज लायबल टू पेड बैक टू द ओनर। और वाइस वर्सा की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि वट एवर ओनर विड्रॉज फ्रॉम बिजनेस, ओनर इज लायबल टू पेड बैक टू द बिजनेस। ऐसा उसका मतलब है। नेक्स्ट लाइन, दैट इज ओनर इन्वेस्ट कैपिटल, that is owner invests capital, that is owner invests capital, that is owner invests capital on which business is supposed to earn profit and paid back to the owner, on which business is supposed to earn profit, on which business is supposed to earn profit, on which business is supposed to earn profit and paid back to the owner, on which business is supposed to earn profit and paid back to the owner. Change the para. The basic inference of this concept is, the basic inference का मतलब कंक्लूजन है बेटा। आपको जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे आप पूछ सकते हैं। The basic inference of this concept is, the basic inference of this concept is, there should be two separate set of books of account. There should be two separate set of books of accounts. There should be two separate set of books of accounts. Number one, business books of accounts for recording business transactions. Number one, business books of accounts for recording business transactions. Business books of account for recording business transactions. And number two, owner's personal books of accounts for recording personal transactions. And number two, owner's personal books of accounts for recording personal transactions of owner. Owner's personal books of accounts for recording personal transactions of the owners. फॉर एग्जाम्पल जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एज इट इज लिख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल क्या है? हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर रेसिडेंस ऑफ द ओनर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर बेटा। इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज ₹50,000 then only 25,000 will be deducted as drawing from proprietor's capital। या फिर सीधा मतलब है कि 25,000 आप बताइए बिजनेस का एक्सपेंडिचर बोल के, 25,000 आप बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में बताइए ही मत। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। आपको अगर ये बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो इसको ड्राइंग बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको अपन कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ये एग्जांपल एज इट इज लिख लीजिए और बताइए बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी में कोई डाउट है क्या बेटा? एवरीबडी? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? चलिए, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब पे किसी को डाउट है बेटा? ऑल दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, एनी डाउट इनटू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? आई होप यू हैव रिटन द कंसेप्ट प्रॉपर्ली। आपने कंसेप्ट लिखा होगा, ऐसा मैं ऑप्टिमिस्टिकली अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब का तो मुझे दिखता नहीं कि आप कर रहे या नहीं कर रहे ठीक से। मैंने आपको पहले ही बोला है हमें बड़ा फोकस तरीके से करना है, क्योंकि हम इसमें सबसे
बड़ी अपनी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज टाइम. टाइम इज मनी एंड टाइम इज लाइफ माय डियर. टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप लगभग जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी बात है. तो आप अगर लेक्चर कर रहे हो तो ध्यान से करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, लिखना चाहिए. सेकेंड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, राइट डाउन. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नंबर 2. Money measurement concept. Write down. According to this concept, only monetary transactions are recorded in the business books of accounts. According to this concept, only monetary transactions are recorded in the books of accounts. According to this concept, only monetary transactions are recorded in the books of accounts. Next line. Business never records non-monetary transactions. Business never records non-monetary transactions. Business never records non-monetary transactions, though they are very important for the business. Business never records non-monetary transactions in the business, though they are very important for the business. For example, ये लिख लीजिए बेटा. For example में क्या लिखना है? Working conditions in the workplace, जो मैंने स्क्रीन पे आपको हाईलाइट किया है, देख सकते हैं आप. For example, working conditions in the workplace, comma, strike by employees, comma, efficiency of the management, comma, etc, change the para. अब ये लिखिए, जो उन्होंने सेकेंड लाइन दिया है ना, यही लिख सकते हैं या फिर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं. चलिए अपने लैंग्वेज में लिखते हैं. business should record their financial statements. Business should record their financial statements into bracket, ऊपर लिखा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिख दीजिए. Business should record their financial statements into bracket profit and loss account and balance sheet, bracket close. Business should record their financial statements into bracket profit and loss account and balance sheet, bracket close, in the ruling currency of the country. In the ruling currency of the country, that is, in the ruling currency of the country, that is the currency from which, I'm writing, you can see, that is the currency from which or from where, that is the currency from where the business has started. The currency from where the business has started. For example, India, तो इंटू ब्रैकेट INR, बराबर है ना बेटा. US इंटू ब्रैकेट डॉलर, UK इंटू ब्रैकेट पाउंड, UK इंटू ब्रैकेट पाउंड, UK इंटू ब्रैकेट पाउंड.
ये कितना आसान कंसेप्ट है बेटा, है ना। बड़ा लंबा 3-4 पैराग्राफ दिए होंगे तो भी 3 ही लाइनें, दैट बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट नेवर रिकॉर्ड्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एग्जांपल। और फिर तीसरा लिखा, बिजनेस शुड एक्सप्रेस देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इनटू देयर होम करेंसी, दैट इज in the currency from where the business has been originated, from where the business has been started। जैसे कि इंडिया में बिजनेस शुरू हुआ है तो INR में रिकॉर्ड करेगा, यूके में शुरू हुआ है तो पाउंड में रिकॉर्ड करेगा, यूएस में शुरू किया है तो डॉलर में रिकॉर्ड करेगा। इस तरह से बड़ा सिंपल है बेटा, मतलब आपके बिजनेस ऑपरेशन 10 कंट्री में हो, 100 कंट्री में हो, 1000 कंट्री में हो, आपको आपका P&L और बैलेंस शीट कौन से करेंसी में बनाना है, आपके होम करेंसी में बनाना है जहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत हुई थी। इंडिया से शुरुआत तो INR में ही रिकॉर्ड करेंगे, यूएस से शुरुआत तो आप डॉलर में रिकॉर्ड करेंगे, यूके से शुरुआत तो आप पाउंड में रिकॉर्ड करेंगे। एज सिंपल एज दैट माय डियर। लेट्स राइट डाउन नंबर 3। यही कंसेप्ट देखिए बेटा, द करेंसी फ्रॉम वेयर द बिजनेस हैज स्टार्टेड, इसी को ऐसा बोला जाता है, द करेंसी फ्रॉम वेयर द बिजनेस हैज बीन ओरिजिनेटेड, हैज गॉट स्टार्टेड, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। बराबर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? राइट डाउन नंबर 3, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ये तीनों नाम इसी कंसेप्ट के बेटा। तो कंसेप्ट का नाम क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। नाम क्या है कंसेप्ट का? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, एक ही नाम है ये। लिख लीजिए बेटा, चलिए। कॉस्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, राइट डाउन। नाम स्टूडेंट्स, कोई डाउट है पहले 2 कंसेप्ट में बेटा? है ना, एकदम सिंप्लीफाई किया ना? यस, राइट डाउन। कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट लिखिए उसमें। According to this concept, according to this concept, according to this concept, all assets should be recorded at, all assets should be recorded at their purchase price. According to this concept, all assets should be recorded at their purchase oblique cost oblique acquisition price। तीनों का मतलब एक ही है बेटा। According to this concept, the assets should be recorded at purchase oblique cost oblique acquisition price in the books of accounts or in the business books of accounts, 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 that is this cost price, that is this cost price is the basis of, that is this cost price is the basis of, that is this cost price is the basis of all further accounting process, all further accounting process, all further accounting process. Next line. Any expenses which are paid, any expenses which are paid, any expenses which are paid oblique incurred, ये दोनों एक ही है बेटा।
एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड और इनकर्ड, कोई भी एक वर्ड लिखिए, दूसरा मैंने आपके बस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए लिखा है। एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड इनकर्ड फॉर परचेस ऑफ these assets, for purchase of these assets, any expenses which are paid or incurred for purchase of these assets, comma, such expenses should be added into cost of the assets, comma, such expenses should be added into the cost of the asset. Such expenses should be added into the cost of the assets. Such expenses should be added into the cost of the asset. That is installation expenses, comma, that is installation expenses, comma, transportation expenses, comma, installation expenses, comma, transportation expenses, comma, any taxes paid on purchase, any taxes paid on purchase, comma, etc, etc. etc का मतलब ऐसी और चीजें हम बुलाते हैं, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने आपके लिए, etc, etc. लास्ट लाइन, चेंज द पैराग्राफ चेंज कीजिए बेटा और लिखिए, cost concept provide the basis of asset accounting. Cost concept provides the basis for asset accounting. Cost concept provides the basis for asset accounting by starting with the cost price, by starting with the cost price and then charging, by starting with the cost price and then charging depreciation each and every year, and then charging depreciation each and every year on the concerned fixed asset, and then charging depreciation each and every year on the concerned asset, and then charging depreciation each and every year on the concerned asset, and then charging depreciation each and every year on the concerned asset. For example, आप लिख सकते हैं, for example, a car is purchased in 2015 for rupees 50 lakh. For example, a car is purchased in 2015 for rupees 50 lakh. A car is purchased in 2015 for rupees 50 lakh and having economic life of 10 years, and having economic life of 10 years, comma, depreciation percentage is 10%. Depreciation percentage is 10%. Then ये जो बेटा लेफ्ट में टेबल दिख रहा है आपको, सबसे पहले 50 लाख, इसको आगे आप कर सकते हैं 2015, है ना, फिर लेस डेप्रीशिएशन, फिर ये वैल्यू हुई 2016 की, फिर से लेस डेप्रीशिएशन, उसके बाद अगली वैल्यू हुई 2017 की, फिर लेस डेप्रीशिएशन, फिर वैल्यू हुई 2018 की, फिर लेस डेप्रीशिएशन, फिर वैल्यू हुई 2019 की। आप ऐसा करते करते 2025 तक बता सकते हैं। ऑब्वियसली 25 के एंड में असेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0। बताना यही है कि दैट द असेट्स बेसिक स्टार्ट्स विथ इट्स परचेस प्राइस, विथ इट्स एक्विजिशन कॉस्ट और विथ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी से कभी भी रिकॉर्ड करेंगे, रादर बेसिस कॉस्ट प्राइस रहेगा, उसमें से आप डेप्रीशिएशन हर साल माइनस करते रहेंगे। मैंने बोला आप इसको कंटिन्यू बताइए बेटा जब तक ये 0 नहीं होता। समझ में आ रहा है?
तो मैंने यहाँ पे 16, 15, 16, 17, 18, 19 तक बताया। 19 के बाद भी ऑब्वियसली -5 लाख करेंगे, 25 लाख आएगा। 20 में 25 लाख आएगा, 25 में से फिर से 5 माइनस करेंगे, 20 लाख आएगा। 21 में 21 का 5 लाख डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे, 22 में आएगा आपका 15 लाख। 22 में 5 लाख माइनस करेंगे, 23 में आएगा 10 लाख। 23 का 5 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 5 लाख, और फिर 24 का 5 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असेट विल बी डन। और डिप्रीशिएशन के लिए लिखिए बेटा, नीचे नोट लिखिए, नोट depreciation is permanent and gradual decrease in the value of fixed assets. नोट लिखिए बेटा, depreciation is permanent and gradual decrease in the value of fixed assets. Depreciation is permanent and gradual decrease in the value of fixed assets. This decrease or reduction happens due to use of the asset. This decrease or reduction happens due to use of the assets, comma, wear and tear of the asset, comma, technological outdatedness, So can I clear the screen now? I hope you got depreciation and its procedure as well. Depreciation का मतलब क्या है? Permanent and gradual decrease in the value of fixed assets. कार का एग्जाम्पल लीजिए, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 2015 में कार खरीदी तो 2025 में भी वही वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। क्यों? क्योंकि कार आपने यूज की ईयर बाय ईयर एंड इट हैज बीन नेचुरली डेप्रीसिएटेड। ये जो कार है ये नेचुरली क्या होगी बेटा? डेप्रीसिएट होती रहेगी और उसकी वैल्यू अपने आप कम भी हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट डेप्रीशिएशन माय डियर। और बताइए ये तीनों कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या? मैंने स्क्रीन पूरी क्लियर कर दी अभी। तो एनी डाउट इनटू दिस पर्टिकुलर थ्री कंसेप्ट्स? नंबर 1 बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट। नंबर 2 इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड नंबर 3 इज कॉस्ट कंसेप्ट ऑब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट अभी अपन देखते हैं जो यहां पे दिया है। थोड़ा सीक्वेंस हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस यहां पे फॉलो नहीं किया है। हम जाएंगे फोर्थ कंसेप्ट देखिए, एंड इज द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सी इज गोइंग कंसर्न। जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कंसेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, वैसे भी उन्होंने भी 4 लाइन ही दी है, हमें 4 लाइन ही चाहिए। फिर से अपन 3 कंसेप्ट देखेंगे बेटा, फिर उसको लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह से करेंगे। सो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? So let me explain you again 3 concept. Going concern concept says that the business is supposed to be there for a fairly longer period of time. अगर मैं पूछूं कि एक बिजनेस की लाइफ कितनी है तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट है। जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लीजिए, अभी जिन्होंने चालू किया था दैट इज रेस्पेक्टेड धीरूभाई अंबानी इज नॉट देयर, ही इज नो मोर, बट फिर भी रिलायंस चालू है बिकॉज इट इज रन बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ मिस्टर अंबानी, उनके बच्चे अभी चला रहे। उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि तो आपकी लाइफ कितनी है तो कोई बोलेगा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई 100 साल बोलेगा। बोलने में क्या जा रहा है ना? लेकिन हमारी लाइफ के लिए वहां पे लिमिटेशन है, बिजनेस की लाइफ के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है।
क्योंकि बिजनेस तो आने वाली जनरेशन या जो भी आप जिसको हैंड ओवर करेंगे वो चलाता रहेगा, दैट वे अराउंड. सो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? Going concern concept simply says that business is supposed to be there for a fairly longer period of time, or business lives for an infinite period of time in the future unless and until business has entered into a state of liquidation. बड़ा सिंपल है बेटा कंसेप्ट. तो ये बिजनेस की जिंदगी के बारे में बोल रहा है कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बोल रहा है the business is supposed to be there for an infinite period of time in the future unless and until business has entered into a state of liquidation. आप बोलेंगे ये क्या होता है सर? लिक्विडेशन का मतलब है सेलिंग योर असेट्स एंड पेइंग योर लायबिलिटीज. बिजनेस का बंद करना मतलब उसको ताला लगाना नहीं होता. बिजनेस का बंद करना मतलब असेट बेचना, उससे जो पैसे आते हैं, जो भी आपकी लायबिलिटी पे करना और बिजनेस शट डाउन करना. दैट इज व्हाट लिक्विडेशन. लिक्विडेशन का सीधा साधा मतलब है बेटा कि आप जो आपके असेट है उनको बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा आपकी लायबिलिटी आप उससे पे करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन. तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है? द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट अनलेस एंड अंटिल इट हैज एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ लिक्विडेशन. यानी बिजनेस तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, लिक्विडेशन नहीं करेंगे, असेट नहीं बेचेंगे और उससे लायबिलिटी पे करके आप क्लोजर नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस चलता रहेगा. So business is supposed to be there for a fairly longer period of time, or business is having an infinite life into the future unless and until it has entered into a state of liquidation. यही ये कंसेप्ट बोलता है. और एक या दो लाइन में एब्सोल्युटली. और इसके हिसाब से क्या होता है आगे उन्होंने कुछ दिया है, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया है. तो एक ही लाइन याद रखनी है कि बिजनेस की लाइफ कितनी है? इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. कब तक बिजनेस जिएगा? Unless and until it has entered into the state of liquidation. जब तक बिजनेस लिक्विडेशन में नहीं जाएगा तब तक बिजनेस दूर तक चलता रहेगा. तो गोइंग कंसर्न देख सकते हैं आप क्या लिखा है. इट इज द बेसिक assumption that business is a going concern and will continue its operation for future for indefinite period of time or for infinite period of time. आगे going concern concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid, and accrued and unearned revenues. For example, assets are generally valued at historical cost. Any increase or decrease in the value of the asset in the short period is ignored. तो ये सारी जो चीजें हैं कि asset की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी घटती है. अगर कार का एग्जांपल लिया बेटा मैंने, तो कार की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम घटेगी. अगर आपकी ओपन लैंड है, सपोज मान लीजिए आपने 5 एकड़ लैंड डेक्कन में खरीद के रखी है 1980 में, तो ये तो सोने से भी ज्यादा कीमत हो गई है ना. डेक्कन में 5 एकड़ का लैंड, हर साल लैंड की वैल्यू बढ़ती ही रहेगी. सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग दैट ये जो वैल्यू बढ़ेगी ये आप रिकॉर्ड करेंगे हर साल, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कब रिकॉर्ड कर पाएंगे? जब आप एक्चुअली लैंड सेल करेंगे तब बोलेंगे इससे इतना पैसा आया है. उसी के साथ कुछ टर्म्स नए दिए जो आप शायद पहली बार देख रहे. लिक्विडेशन समझ में आया बेटा? लिक्विडेशन का सीधा साधा मतलब है सेलिंग योर असेट्स एंड पेइंग ऑल योर लायबिलिटीज. अब देखते हैं व्हाट डज मीन बाय आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था. आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड. ये आउटस्टैंडिंग के मतलब है जो यहां पे दिया है. यानी जो भी आप अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हैं अकाउंट्स में, वो बताते हैं आप गोइंग कंसर्न के हिसाब से. तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस इज सपोज टू लिव फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर अनलेस एंड अंटिल इट हैज एंटर्ड इनटू अ स्टेट ऑफ लिक्विडेशन. यानी बिजनेस तब तक जिंदा रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे. बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे. क्लोज करना मतलब क्या? लिक्विडेशन करना. लिक्विडेशन करना मतलब क्या? असेट्स बेचना और लायबिलिटीज पे करना. तब तक बिजनेस चलेगा. और इसी की वजह से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है अलग अलग आइटम्स की, जैसे कि मान लीजिए वी आर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस फॉर FY 23-24. ये ध्यान से सुनिए बेटा, हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं FY 23-24 के, और उसमें एक हेड है सैलरीज. क्या है? सैलरीज. और हमारे बिजनेस में सिर्फ 10 महीने की सैलरी दी लोगों को. दैट इज राइट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024. आप बोलेंगे फरवरी और मार्च का क्या? ये आपने बोला है कि पे करना है लेकिन पे नहीं किया है, ड्यू बट नॉट पेड. तो ये कौन से पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली ये बिलोंग करेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24.
तो आप इसको क्या बुलाएंगे उसके लिए? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अनपेड सैलरीज और अक्रूड सैलरीज, मतलब सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो ये जो आउटस्टैंडिंग आपने बताया, उसी तरह से मान लीजिए एक बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, जनरल इंश्योरेंस अपन लेते हैं ताकि अगर आग लग गई, कुछ दुर्घटना हो गई तो अपने को इंश्योरेंस से पैसा मिले। और इंश्योरेंस का जो डेट है हमारा रिन्यू करने का, अपन इंश्योरेंस रिन्यू करते बेटा 1 अक्टूबर को हर साल। तो 1 अक्टूबर को रिन्यू करेंगे, 1 अक्टूबर 2023 से हमारा रहेगा रिन्यूअल टिल 30 सितंबर 2024। अब प्रॉब्लम ये है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है अप्रैल 2024 में, लेकिन इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं सितंबर 2024 तक, मतलब 6 महीने का इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर हम एडवांस में पे कर रहे हैं। क्योंकि ये बोलता क्या है बेसिकली कि जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट निकाल पाए। मतलब अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देखिए 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024, अगर इसका आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे बेटा, तो इसी साल का आपने क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? रेवेन्यू। You should record the expenses of the same year along with income or revenue for the same year. ये भी एक कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसको हम बुलाते हैं मैचिंग कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। किसी भी साल का आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ उसी साल का रेवेन्यू मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू आपको लॉस होगा। लेकिन ये जरूरी है जिन 12 महीनों का आप एक्सपेंडिचर कंसिडर कर रहे, उन्हीं 12 महीनों का आप इनकम कंसिडर करें और उनको आप कंपेयर करें, तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, अब अगर मैं 23-24 का रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, तो मैंने 31 मार्च 2024 से आगे की जो है वो यहां पे नहीं आने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने तो इंश्योरेंस पे कर दिया। अब ये कैसे पे किया? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, पेड इन एडवांस हो गया, तो इसको प्रीपेड यहां पे बोला बेटा। तो ये दूसरी टर्म मैं आपको बता रहा हूं। पहला डिप्रीशिएशन तो आपको पता है, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पता है, प्रीपेड मैंने आपको बता दिया। प्रीपेड का मतलब क्या है? पेड इन एडवांस। क्यों पे किया? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस 1 साल के लिए पे करते हैं और आपका जो डेट है वो 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से लेके आने वाले 30 सितंबर तक आपने पे किया, लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। तो जब आप आपका स्टेटमेंट बना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, उसका डेट तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक है, लेकिन इसमें आपने ऐसा भी एक्सपेंडिचर बता दिया जो 2024 और 25 से, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, दैट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो ये 6 महीने का आप बताएंगे इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, को बताएंगे प्रीपेड बटा, और वही यहां पे दिया है। उसके बाद अक्रूड, अक्रूड का मतलब वही है, आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड इज वन एंड द सेम थिंग। और उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? यानी जो अभी तक आपको अर्न नहीं हुआ है। जैसे कि सपोज आपने एफडी किया एक बैंक में, और आपने एफडी किया 1 जून 2023 को, 1 साल का 12 महीने का एफडी किया आपने, तो आपको इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए बेटा? इसका आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऑब्वियसली 31 मई 2024 को, बराबर है, 1 साल बाद एग्जैक्टली, या आप बुलाइए 1 जून 2024 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट आपकी एफडी का बिल्कुल 12 महीने बाद, क्योंकि 12 महीने की एफडी आपने की है। लेकिन आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 मार्च 2024 को, बुक क्लोजर कर रहे हैं आप 31 मार्च 2024 को। आप 31 मार्च को आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये आप रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? क्योंकि इसका डेट तो अभी बाकी है, तो अभी के लिए क्या बोलना पड़ेगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी ये आपको अभी तक मिला नहीं है और ना कि मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि और 2 महीने बाकी है एफडी के लिए। That is how it is unearned revenue, or you can say that revenue received in advance, though it is not earned. लेकिन क्या हुआ? आपको बुक क्लोजर करना है, इसलिए आपने क्या कर लिया? आपने ये इंटरेस्ट बता दिया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरे 12 महीने का। अब प्रॉब्लम यह है, फिर से यहां पे सिर्फ 10 महीने का रिलेट करता है, अगले 2 महीने का आपको बताना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों? बिकॉज दैट डजंट बिलोंग टू 2023-24, दैट रादर बिलोंग्स टू 24 and 25।
5। तो ये 4 टर्म का मीनिंग है बेटा। फिर से गोइंग कंसर्न आपको बताता हूं मैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज सिंपली द बिजनेस इज सपोज टू बी living for a fairly longer period of time, that is infinite period of time, unless and until it has entered into a state of liquidation. And as it has infinite life, that is how the accounting treatment of different things in terms of depreciation, treatment of outstanding and prepaid, accrued and unearned revenue, all these are going to be done on the basis of going concern concept. क्यों? क्योंकि भले ओनर कल नहीं रहेगा लेकिन बिजनेस तो जरूर रहेगा, और बिजनेस रहेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस अगर वहां पे रहेगा तो फिर उस तरह से आगे चलता ही रहेगा, और उसके हिसाब से ये जो सारे एक्सपेंसेस है, कौन से, आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू है, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अक्रूड एक्सपेंसेस है, ऑल आर सपोज टू बी देयर एंड ऑल आर सपोज टू बी कंसिडर्ड। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है बेटा, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रूअल। अक्रूअल के बाद रियलाइजेशन देखते हैं। अभी बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट तो बता दिया, यहां पे क्या बोला मैंने, पीरियोडिसिटी और मैचिंग कंसेप्ट। चलो पहले उस पे लेके चलता हूं ताकि वो आपको पता चले, वो बहुत जरूरी है। पीरियोडिसिटी और मैचिंग का मतलब क्या है, उन्होंने दिया है क्या? यस, ये देखिए मैचिंग कंसेप्ट। इसी के साथ मैं क्या बोल रहा हूं, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट। ये पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम चलते हैं अक्रूअल पे। तो पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी जिस साल का एक्सपेंसेस और लॉसेस आप कंसिडर कर रहे, उसी साल का आपने इनकम और गेन कंसिडर करना चाहिए। दोनों का आपने क्या करना चाहिए बेटा? कंपैरिजन, टू फाइंड आउट वेदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉसेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे ये पर्टिकुलर साल के लिए 2023 और 24, मतलब ये क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 से लेके आप शुरुआत करेंगे और जाएंगे आप 31 मार्च 2024 तक। सो फॉर दीज 12 मंथ्स यू आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसी 12 महीने का एक्सपेंसेस और लॉसेस लेंगे, इसी 12 महीने का इनकम और गेन लेंगे और एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, सो दैट यू कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो दिस इज पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग। अब आप बोलेंगे कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल, दैट इज मिल्क, शुगर, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट एसेंसीज रिक्वायर्ड। ये सारा खर्चा आप करेंगे, क्यों? ताकि आप आइसक्रीम बनाएंगे और आइसक्रीम मार्केट में बेचेंगे। अब आइसक्रीम बनाई आपने 20 रुपए की और बेची आपने 30 रुपए में। द इंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट ऑफ पर स्कूप ऑफ आइसक्रीम इज 20 रुपीज। 20 रुपए का आइसक्रीम पर स्कूप बना और आपने मार्केट में उसको बेचा बेटा 30 रुपए में, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? ऑब्वियसली 10 रुपए। तो ये सारा एक्सपेंसेस आप कंपेयर करेंगे उसके रेवेन्यू के साथ और आप कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। द पीरियड विच इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट शुड बी वन एंड द सेम। उन्हीं 12 महीनों का एक्सपेंसेस एंड लॉस कंसिडर करना चाहिए, उन्हीं 12 महीनों का इनकम और गेन कंसिडर करना चाहिए, टू अराइव एट वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और यू आर इन लॉसेस। आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये अगर आपको निकालना है तो ये 12 महीने का एक्सपेंसेस और 12 महीने का इनकम आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यही फर्स्ट लाइन यहां पे बोल रहा है, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू during an accounting period are matched with expenses incurred during that period to earn revenue during that period. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status. तो मैंने तो टाइम फ्रेम आपको बता दिया। हम अगर 23-24 का बोल रहे तो 1 मार्च 23 से लेके 31 मार्च 24। हम अगर 22-23 का बोलेंगे तो 1 मार्च 22 से लेके 31 मार्च 23। हम अगर 21-22 का बोलेंगे तो 1 मार्च 21 से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। इस तरह से हम अकाउंटिंग पीरियड लेंगे। सो दैट इज पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट सेज दैट यू शुड मैच द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू for the same period to calculate profit and loss
द टाइम फ्रेम शुड बी फिक्स्ड एंड टाइम फ्रेम शुड बी वन एंड द सेम। आगे दिया है ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। इसका क्या मतलब है? ट्रिकी है क्या ये? नहीं है बेटा, ये बड़ा आसान है। यानी जो एक्सपेंसेस आपने वो पीरियड में पे किए वो कंसिडर नहीं करने हैं, जो एक्सपेंसेस वो पीरियड से रिलेट करते हैं वो कंसिडर करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 जून 2024 में 20 जून 2024 में आपने फरवरी और मार्च 2024 की सैलरी दी। मैंने बोला ना 2 महीने की सैलरी आपने नहीं दी थी, पीछे बताया था मैंने। लेट्स अज्यूम दैट in the last year you haven't paid the salaries for the last 2 months to the employees। जो सैलरी आपने दी जून 2024 को, ये कब की सैलरी थी बेटा? ये सैलरी थी एक्चुअली 22 और 23 की। क्यों? क्योंकि दैट सैलरी बिलोंग्स टू February 2023 एंड मार्च 2023। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग थी जो आपने पे की। अभी कब पे की आपने? 2023 में, सॉरी आपने पे की 2023 में। 20 जून 2023 को आपने सैलरी पे की। ये कब की सैलरी थी बेटा? फेब और मार्च 2023 की। मींस इट वाज बिलोंगिंग टू द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये रिकॉर्ड भी 22-23 में ही होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग बोल के तब रिकॉर्ड होनी चाहिए और हुई भी होगी। एक्चुअल तुमने पे कब की? ये पे की आपने जून 2023 में। लेकिन जून 2023 जैसे ही आप बोलते हैं देन दिस फाइनेंशियल ईयर इज 23 और 24, लेकिन सैलरी ये थी 22 और 23 की। इसी का मतलब ये बोलना है दैट यू शुड नॉट रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन दैट ईयर रादर विच आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर। इसका सीधा साधा मतलब मैं आपको बोलता हूं, अगर वो साल से एक्सपेंडिचर रिलेट करता है तो उसी साल में रिकॉर्ड करना है, भले वो पे किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर। और इसी के लिए अक्रूअल बुलाते हैं। तो अक्रूअल क्या होता है? अक्रूअल कंसेप्ट इन वन लाइन सेज दैट रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस whenever they are happening irrespective of the fact that they are paid in cash or not or they are received in cash or not। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, आज का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अभी कौन सा साल चल रहा है बेटा? 2024 और 25, बराबर है। मान लीजिए ऑन टुडेज डेट दैट इज ऑन 16th of July I sold goods worth rupees 10 लाख। मैंने 10 लाख के गुड्स बेचे, आज की डेट में 10 लाख के गुड्स बेचे और मैंने क्रेडिट पीरियड दिया सामने वाले को 1 साल का। अब ऐसा तो होता नहीं अव्वल, लेकिन मान लेते हैं कि आपने गुड्स बेचे और क्रेडिट पीरियड कितना दिया बेटा? सीधा 1 साल का क्रेडिट पीरियड दे दिया। मतलब ये 16 जुलाई 2024 को जो मैंने बेचा है, पैसे कब आएंगे? पैसे आएंगे 16 जुलाई 2025 को, बराबर है? 16 जुलाई 2025 को। तो अब बताइए ये मैं इनकम रिकॉर्ड कब करूं? 2024 में करूं या 2025 में करूं? यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको अक्रूअल बताया था। अक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू in that period whenever it is actually happening irrespective of the fact that it is paid in cash or not, it is received in cash or not। यानी कभी भी आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं बिजनेस में, इनकम रिकॉर्ड करने हैं, तो आपको उसी डेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब वो एक्चुअली एक्सपेंसेस हुआ है या इनकम हुआ है, ना कि जब वो पे किया गया है कैश में या रिसीव किया गया है। इसका कोई लेना देना नहीं कि आपको पे कब हुआ है, रिसीव कब हुआ है। आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस या इनकम कब हुआ है ये मैटर करता है। तो मैंने सेल कब किया बेटा? रेवेन्यू कब हुआ? रेवेन्यू हो गए 16 जुलाई 2024 में। पैसे कब आएंगे? 16 जुलाई 2025 में। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूं? यस, अक्रूअल के हिसाब से रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूं बेटा? करेक्ट, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन today's date, that is 16th July 2024। I should not wait for 16th July 2025 because this is accrual concept, and accrual concept says that record expenses, losses, revenue, incomes whenever they are actually happening irrespective of the fact that they are paid in cash or not or they are received in cash or not। फिर से दोनों एग्जांपल रिपीट करता हूं आपके लिए। आपका सेल्स है बेटा 16 जुलाई 2024 का, पैसा आएगा 16 जुलाई 2025 को। तो हम 2025 का वेट भी नहीं कर रहे, भले पैसा मिलेगा 2025 में, लेकिन सेल हमने रिकॉर्ड किया 2024 में, क्योंकि एक्चुअल सेल कब हुआ है? 16 जुलाई 2024 को ही हुआ है। उसी तरह से ये सैलरी देखिए फरवरी और मार्च 2023 की थी, लेकिन आपने पे की
20 जून 2023 को, लेकिन इट वॉज बिलोंगिंग टू द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए 22 और 23 में एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। भले आपने पे की 23-24 में, लेकिन ये रिकॉर्ड होगी 22-23 में एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका मतलब है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट फिर से बता रहा हूं, अक्रूवल कंसेप्ट सेज दैट रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू whenever they are actually happening irrespective of the fact that they are paid in cash or not or received in cash or not। अब देखिए अक्रूवल यहां पे दिया है आपकी स्क्रीन पे, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज दैट इज अर्नड, मतलब 16 जुलाई 2024 को आपने सेल किया, आज अक्रू हुआ, पैसा नहीं मिला भला, क्यों? क्रेडिट पे बेचा, एक साल बाद मिलने वाला है, लेकिन आप रिकॉर्ड तो आज ही करेंगे। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अक्रू बिकम पेएबल। तो एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड किए? ये सैलरी जो अनपेड थी, तो ये रिकॉर्ड की आपने बराबर 22-23 में, भले आपने पे की 23-24 में। All expenses and revenue related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash or not or expenses are paid in cash or not। एक एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है, यहां पे समझने के लिए आसान है। एक कंपनी में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बैंक में फॉर 1 ईयर, 1 अक्टूबर 2015 पे, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी 10% 30 सितंबर 2016 को। 30 सितंबर आप 2016 को इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट आपने कब किए बेटा? 1 अक्टूबर 2015 को, तो आपको इंटरेस्ट मिला ना मिला, लेकिन इन्वेस्टमेंट की डेट तो आज की ही रहेगी। उसी तरह से मैंने बोला सेल अगर आज का है तो आज ही रिकॉर्ड करेंगे, भले पैसा 1 साल बाद मिले। सैलरी अगर फरवरी और मार्च 2022-23 की है तो उसी टाइम आउटस्टैंडिंग बोल के रिकॉर्ड होगी, भले आप जून 2023 में उसको पे करें। That is how accrual concept says that record expenses, losses, income and revenue whenever it is actually happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not and received in cash or not। यानी हमें इंतजार नहीं करना है, और अगर इस तरह से इंतजार करेंगे तो कितना याद रखेंगे हम कि इसको इतना बेचा है, आना है। हमने डायरेक्ट अक्रूवल पे रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज गुड्स सोल्ड ऑन 16 जुलाई 2025 फॉर ₹5 लाख ऑन क्रेडिट फॉर 1 ईयर, मतलब ये आज का ही रेवेन्यू है, आज का ही सेल है। पैसा मिला क्या? नहीं, पैसा मिलेगा 1 साल बाद। डोंट बी कंफ्यूज्ड, एंटायर अकाउंटिंग गोज ऑन अक्रूवल बेसिस माय डियर। पूरी अकाउंटिंग किस पे चलती है? अक्रूवल पे ही चलती है। अक्रूवल, पीरियडिसिटी और मैचिंग सब एक साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। पीरियडिसिटी और मैचिंग बोलता है कि आपने सेम पीरियड के एक्सपेंसेस रेवेन्यू कंपेयर करने चाहिए एक दूसरे से, सो दैट यू कैन कम एट द प्रॉफिट और लॉस। एट द सेम टाइम अक्रूवल बोलता है दैट record the expenses and revenue whenever it is actually happening irrespective of the fact that it is paid in cash or not, it is received in cash or not। मतलब जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए, भले उस साल पे हुआ या नहीं हुआ, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, दैट डजंट मैटर। दैट इज हाउ अकाउंटिंग गोज ऑन अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस दूसरा है। कैश बेसिस बोलता है रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज पेड और रिसीव्ड इन कैश। आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस में कैश बेसिस नहीं चलेगा बेटा। कैश बेसिस सिर्फ कैश बिजनेस में चलता है। जैसे कि रेलवे है, फ्लाइट है, रेलवे का टिकट आप बुक कर सकते हैं क्या क्रेडिट पे? फ्लाइट का बुक कर सकते हैं क्या कि पैसे देता हूं ना, बार बार तो आता जाता रहता हूं, चलता है क्या? नहीं चलेगा, ये कैश बिजनेस है, यहां पे अक्रूवल नहीं चलता। लेकिन बाकी जो मार्केट में बिजनेस है वहां पे क्रेडिट तो देना पड़ेगा, और क्रेडिट देंगे तो उसको इमीडिएटली आज ही रिकॉर्ड करेंगे कि सेल तो आज ही हुआ है, भले पैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेंगे। आज यू हैव गिवन क्रेडिट पीरियड टू योर कस्टमर। तो फिर से अक्रूवल पे आ रहा हूं, और अक्रूवल बड़ा सिंपल, यहां पे 4 लाइन में ही अक्रूवल दिया बेटा। अक्रूवल का समराइज्ड वर्जन क्या है? रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस whenever they are actually happening irrespective of the fact that they are paid in cash or not or they are received in cash or not। यानी जब एक्चुअली एक्सपेंसेस हुए, जब इनकम हुआ, तभी उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि जब आपने कैश पे किया या कैश रिसीव किया तब रिकॉर्ड करना चाहिए। बड़ा सिंपल है अक्रूवल कंसेप्ट। और उसी के साथ पीरियडिसिटी और मैचिंग क्या बोलता है? दैट इफ यू वांट टू अराइव एट प्रॉफिट और लॉसेस, देन सेम पीरियड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस should be compared with same period income and gains so that you can arrive at profit or losses, and obviously this is going to pave the way। ये कहां से आया सारा? शुरुआत हमने की थी गोइंग कंसर्न की, उसमें कुछ टर्म्स दिए थे, वो गोइंग कंसर्न से हमने लिया
पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी मैचिंग से लिया हमने अक्रूवल। मैचिंग को खत्म करते हैं। दूसरा पैराग्राफ मैचिंग का बोलता है ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट, एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एंड अक्रूड एंड अनअर्न्ड, जो मैंने आपको अभी बताया। Also, due provisions are made for depreciation on fixed assets, bad dates relating to the accounting period. Bad dates क्या होते हैं? The amount which is not recovered from the debtors. डूब गए, bad dates are nothing but the amount which is not recovered from the customers or debtors, जिन्होंने आपका पैसा डुबाया, bankrupt हुए, insolvent हुए। हमने देखा था बेटा bad dates बेसिक कंसेप्ट में। और आखिरी में लाइन बोलता है thus it matches the revenues earned during an accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenue before sharing any profit or loss। यानी सीधा साधा मतलब है, अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी टाइम का या उसी साल का, उसी 12 महीने का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस should be compared with income and gains. So if you are considering 24-25, then 1st April 2024 to 31st March 2025, ये 12 महीने का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप कंपेयर करेंगे इसी 12 महीने के इनकम और गेन के साथ, तब आप बुलाएंगे यस वी आर फॉलोइंग द मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और इसी के साथ अक्रूवल भी है। अक्रूवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग इज गोइंग ऑन अक्रूवल बेसिस। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग किस पे चलती है बेटा? तो अक्रूवल पे चलती है। और अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल कंसेप्ट सेज दैट record the expenses, losses, revenues and incomes whenever it is actually happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not and it is received in cash or not. That is what accrual, यानी जब expenses हुआ है तभी रिकॉर्ड करना है, ना कि जब पे और रिसीव हुआ उसका इंतजार करना है। क्योंकि इस तरह से तो बिजनेस चलेगा नहीं। वहां पे हजारों सप्लायर रहेंगे एक बड़े बिजनेस के और लाखों कस्टमर रहेंगे, तो आप सबका याद रखते थोड़ी बैठेंगे कि इससे पैसा जब आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, जब उसको बेचा तभी रिकॉर्ड करेंगे, जब उससे खरीदा तभी रिकॉर्ड करेंगे, दो इट इज ऑन क्रेडिट और ऑन कैश, so that there won't be any confusion and there won't be any missing and we should calculate right profit and loss for the business। तो उसको अक्रूवल बोलते हैं बेटा। तो ये तीन कंसेप्ट हमने देखे अभी। कौन सा? पहला देखा गोइंग कंसर्न, उसके बाद हमने देखा पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग, और उसी के साथ हमने देखा अक्रूवल कंसेप्ट। तो वन बाय वन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए बेटा गोइंग कंसर्न, और मेरे ख्याल से गोइंग कंसर्न आपने वैसा ही लिखना चाहिए जैसा यहां पे दिया है। यहां पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए गोइंग कंसर्न एज इट इज कॉपी मारिए बेटा यहां का। गोइंग कंसर्न को कुछ चेंज नहीं करना है। ऑल यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स शुड कॉपी गोइंग कंसर्न, जो यहां पे दिया बेटा 4 लाइन एज इट इज लिखने हैं। वी नीड नॉट चेंज। अक्रूवल और मैचिंग पीरियोडिसिटी मैं लिखवा के देता हूं, गोइंग कंसर्न एज इट इज हमें लिखना है। तो जस्ट राइट डाउन गोइंग कंसर्न एज इट इज। और कोई डाउट है तो जरूर बोलिए यूट्यूब वाले। Write down the going concern concept as it is, which is available on the screen. Don't change anything. Do let me know in case you are having any doubt. You can just write down in the chat box for any doubts, my dear. कोई डाउट जरूर है तो आप बताइए चैट बॉक्स में। एज इट इज लिखना है, कोई लाइन मत छोड़िए। 4-5 लाइन दिए बस। इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद वैसे भी प्रैक्टिकल है। सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स। देयर विल बी सम्स एंड सम्स ओनली आफ्टर दिस थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी देखना जरूरी है क्योंकि पूरा अकाउंट्स बेस्ड इसी पे है।
Do let me know once you are done so that we can write down the next one. Okay, write down next one. चलिए लिखिए बेटा next one. Write down accrual concept. Give heading accrual concept and give the number 5. Give the number 5. Accrual concept. Write down. The concept says that business should record expenses, comma losses, business should record expenses, comma losses, comma incomes and revenue, whenever it is actually happening. Irrespective of the fact that का स्पेलिंग यहां पे है बेटा अगर चाहिए तो, irrespective of the fact that they are paid in cash or not, and received in cash or not, change the para and write down. Worldwide accounting is going on accrual basis. पूरी दुनिया में अकाउंटिंग अक्रूवल पे ही चलते बेटा, कैश पे कोई नहीं चलता. कैश का प्रॉब्लम क्या होगा, जब कैश पे किया या रिसीव किया तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, ना कि जब आपने एक्चुअल खरीदा है या बेचा है क्रेडिट पे तब रिकॉर्ड करो. मतलब अगर मैं आज 16 जुलाई 2024 को बेच रहा हूं, पैसा अगर 16 जुलाई 2025 में आ रहा है तो आई शुड रिकॉर्ड ऑन 16 जुलाई 2025. दैट इज व्हाट कैश बेसिस. लेकिन अक्रूवल बोलता है रिकॉर्ड व्हेनेवर इट इज हैपनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज पेड इन कैश और नॉट. इसलिए वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग किस पे चलती है बेटा, अक्रूवल पे. राइट डाउन. फॉर एग्जांपल if the salaries for Feb and March 2023, are paid on 20th June 2023, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, are paid on 20th June 2023. Continue. These salaries belong to the financial year 2022-23. These salaries belong to financial year 2022-23 and hence should be recorded as outstanding salary in 2022-23, in 2022-23 or in 2022-23. Continue.
It will not be recorded in 23-24. It will not be recorded in 23-24, though it is paid on 20th June 2023. Though it is paid on 20th June 2023. समझ में आया बेटा? तो सैलरी बिलोंग कौन से साल को करती है? ऑब्वियसली 22-23 में, क्योंकि फरवरी और मार्च 22-23 की सैलरी है। ऑब्वियसली 1 अप्रैल 22 को शुरू होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, और फरवरी और मार्च की सैलरी है, तो उसी साल में आप आउटस्टैंडिंग बताएंगे 22-23 में। भले आपने इसका पेमेंट किया जून 2023 में, फिर भी ये 23-24 में हम नहीं बताएंगे। आउटस्टैंडिंग बोल के ये जरूर बताएंगे हम 22 और 23 में। दैट इज व्हाट अक्रूवल कंसेप्ट। दूसरा एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल, इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, if goods are sold on credit on 5th of January 2024, if goods are sold on credit on 5th of January 2024, if goods are sold on credit on 5th of January 2024 of rupees 50 lakh, for 3 months credit period, अब देखिए बेटा, ये आप 5 जनवरी 2024 को बेच रहे, क्रेडिट पीरियड आपने दिया 3 महीने का। पैसा कब आएगा? पैसा आएगा 5 अप्रैल 2024 को। लेकिन अगर 5 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, और अगर जिस दिन हुआ उस दिन रिकॉर्ड करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24। बराबर है? कंटिन्यू। इन दिस केस सेल और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, इन दिस केस सेल और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन financial year 2023-24. The sale or revenue is recorded in financial year 2023-24, and it won't be recorded in 24-25, and it won't be recorded in 2024-25, though amount of sale is to be received on 5th of April 2024. Though amount of sale is to be received on 5th of April 2024. भले ही आपको सेल की अमाउंट 5 अप्रैल 2024 को मिल रही है, तो ये 24-25 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कब कर रहे? जब रेवेन्यू एक्चुअली हुआ है। और एक्चुअली रेवेन्यू कब हुआ बेटा? आपका रेवेन्यू हुआ 2023 और 24 में। क्यों? क्योंकि आपका 2023 शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जो मैंने लिखा ऊपर। तो आपने बेचा कब? 5 जनवरी 2024 को, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर तो 23-24 है। तो इसी साल में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। भले पैसा आपको अगले साल में आने वाला है, क्योंकि आपने क्रेडिट में बेचा और पैसा अगले साल मिल रहा है, बट स्टिल सेल और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन 2023-24, दो अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन 24 एंड 25। आई होप यू आर गेटिंग अक्रूवल। तो अक्रूवल में कोई डाउट है बेटा? समझ में आ रहा है? ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट इनटू अक्रूवल? आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? चलिए नेक्स्ट लिखिए, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट, वैसे भी यहां पे बहुत कुछ मैंने लिख दिया है जो आपको शायद फिर से रिमाइंड कराएगा, जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। कंसेप्ट का सीधा साधा बोलना क्या है बेटा? द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर द सेम पीरियड शुड बी कंपेयर्ड टू अराइव एट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप 2023 और 24 का एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे तो 2023 और 24 का ही आपने रेवेन्यू और इनकम कंसिडर करना चाहिए, सो दैट यू कैन अराइव एट लॉजिकल प्रॉफिट और लॉसेस। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने 23-24 के 12 महीने का एक्सपेंसेस लिया और 22-23 के 12 महीने का इनकम लिया। ये तो कंपैरिजन से बाहर हुआ, क्योंकि पिछले महीने का इनकम, पिछले साल का इनकम और इस साल का एक्सपेंसेस, ये कंपेयर नहीं हो सकता। उसी 12 महीने का एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस,
दैट इज कॉल्ड एज सिंपली पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट। उसी को पीरियोडिसिटी और मैचिंग बुलाते हैं बेटा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, according to this concept, the revenue and expenses for the same period should be compared. The revenue and expenses for the same period should be compared for calculation of profit or losses of that period. For calculation of profit or losses of that period. For calculation of profit or losses of that period. For example, if we are calculating profit and loss for FY 23-24, for example, if we are calculating profit or loss for FY 2023-24, then we should consider expenses and revenue. Then we should consider expenses and revenue of ये लिख लीजिए बेटा, of 1st April 2023 to 31st March 2024. 1st April 2023 to 31st March 2024. So are you getting this very clearly? समझ में आ रहा है बेटा? मतलब जो पीरियड का एक्सपेंसेस और लॉसेस लेंगे उसी सेम पीरियड का इनकम और गेन उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा टू अराइव एट लॉजिकल प्रॉफिट और लॉस। आगे कंटिन्यू कीजिए। एग्जाम्पल के बाद जो इन्होंने दिया है वो लिखना चाहिए। मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट। राइट डाउन। मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट, क्योंकि हमने मैचिंग और पीरियोडिसिटी को कंबाइन कर दिया बेटा। मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट। is based on accrual concept। और आगे ये लाइन लिखिए जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है, periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status। Write down as it is, periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा बेटा सो दैट वी कैन रिवाइज व्हाट वी हैव सीन टुडे। जरूरी है रिवाइज करना, बस 5 मिनट। एनीवेज टुमारो इज अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ इट इज, उसको बड़ी एकादशी बोला जाता है, मोटी एकादशी बोला जाता है मराठी में। सो टुमारो क्लास वोंट बी देयर, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे सो दैट आई कैन रिवाइज हियर। सो राइट डाउन, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस the time period for measuring performance and determining financial status। और एक चीज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये जो नीचे का पैराग्राफ है एज इट इज कॉपी करना है। नीचे जो नीचे पैराग्राफ 2 पैराग्राफ दिए, ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड शुड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। और उसके नीचे का पैराग्राफ यानी जो नीचे पिंक में दिया है उसके ऊपर के दोनों पैराग्राफ आपको कॉपी करने हैं। तो आज हमने क्या देखा बेटा, वी हैव सीन जस्ट 3 कंसेप्ट्स टुडे। 3 कंसेप्ट कल के हमने लिखे थे, जैसे कि बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और तीसरा कंसेप्ट कल का हमारा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। आज हमने शुरुआत की फर्स्ट कंसेप्ट वी हैव सीन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंसेप्ट सेज दैट business is supposed to be there, or business should have a life which is infinite period of time, and on that basis business should be a long living entity, infinite entity, which is always going to record outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and unearned revenues। ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है और इनका मतलब क्या है मैंने आपको तभी बताया था। और at the same time it says further that this गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज इंटायरली द बेसिस फॉर फर्दर अकाउंटिंग। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा, नंबर 5 इज अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट सेज दैट record the expenses, revenues, losses, income
whenever it is actually happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not, or it is received in cash or not. इसका मतलब है अगर मैंने फरवरी और मार्च 2023 का सैलरी देना बाकी है तो मैंने वो 22-23 में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। भले मैंने पे किया जून 2023 में, फिर भी मैं रिकॉर्ड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के 2022 और 23 में, क्योंकि वो पीरियड से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, भले पे ना हुआ हो, डजंट मैटर। उसी तरह से मैंने आपको बोला अगर आपने गुड्स बेचे जनवरी 2024 को 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे, पैसा तो आएगा 5 अप्रैल 2024 को, लेकिन ये रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 2024-25 में नहीं, रादर 2023-24 में, क्योंकि 5 जनवरी 2024 आता है 2023 और 24 में, क्योंकि आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ये आपका 23-24 फाइनेंशियल ईयर है बेटा, और इसका पैसा आ रहा है 24-25 में, फिर भी सेल रिकॉर्ड करेंगे 2023-24 में, बिकॉज कंसेप्ट सेज दैट record the revenue, expenses, losses, income during the same period whenever it is happening, irrespective of the fact that cash is paid or not, or cash is received or not. That is what accrual concept. और finally हमने देखा periodicity and matching concept, which says that record the revenue and expenses for the same period so that they are comparable, so that we can calculate the profit or loss, no matter though they are received or not in the same period. Periodicity and matching is exactly based on accrual concept. Periodicity fixes the time frame of the accounting period so that you can calculate logical profit or losses for the particular period of time. इसी के साथ ये आगे ये भी बोलता है कि जब आपने एक्सपेंसेस या रेवेन्यू पे किया या रिसीव किया तब रिकॉर्ड नहीं करना है, रादर ये रिकॉर्ड तभी करने हैं जो ये पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल वहां पे बोले। एंड याद रखिए पीरियोडिसिटी, मैचिंग, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न तीनों एक साथ चलते हैं, तीनों एक साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ आपको ये टर्म समझ में आ जाएंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय आउटस्टैंडिंग और अक्रूड, व्हाट इज मीन्ड बाय अनअर्न्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय बैड डेट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय एट द सेम टाइम प्रीपेड। ये सारे टर्म्स हमको यहाँ पे देखने मिले, एक गोइंग कंसर्न में, दूसरा पीरियोडिसिटी और मैचिंग, और तीसरा अक्रूवल। बताइए कोई डाउट है क्या बेटा? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फॉर एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट बुक बॉक्स जो यूट्यूब पे देख रहे बेटा, और बाकी लोग तो जो है वो मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो वी आर डन विद दीज 3 concepts. नाउ सी यू फॉर मैथ्स लेक्चर ऑन थर्सडे। टुमारो विल बी अ हॉलीडे, कल क्लास नहीं रहेगा, कल हमने छुट्टी रखी है बिकॉज ऑफ इट इज बड़ी एकादशी है, we won't have class tomorrow. So I hope you enjoyed this lecture. Go through all these 6 concepts: business entity, money measurement, cost or objectivity. Then the 4th one is going concern, 5th one is accrual, and 6th is matching and periodicity concept. Thank you students. Have a wonderful evening ahead and God bless you.